رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب افعال بیچارہ ابھی تک چل رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا سب سے مشکل جو ہمارے پاس باب ہے وہ باب افعال ہے. آج ہم باب افعال کی دو چیزیں کریں گے. دو چیزیں مینس ایک تو ہم میننگ کریں گے باب افعال کی, دوسرا ہم کوشش کرتی ہوں میں کہ آج ہم باب افعال کا اسم فاعل اور اسم مفعول کو پڑھیں اور اسم فاعل اور اسم مفعول باب افعال کا ہم ختم کریں, فنش کریں. ٹھیک ہے, چلیں. سب سے پہلے ہم نے جو باب افعال کا پڑھا تھا وہ آپ مجھے بتائیں گے کہ کہاں کتنے اس کی میننگ ہو گئی؟ کون بتائے گا؟ جی سعیدہ آپا آپ بتائیں گے کہ کتنی میننگز ہو گئی تھی باب افعال کی؟ جی سعیدہ آپا اب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ مجھے لگتا ہے آواز نہیں. عظمت آپا جی آنٹی, ہم نے کتنا پڑھ لیا تھا؟ جی ہم نے باب افعال کی دو میننگ پڑھی تھی. پہلی میننگ ہم نے یہ پڑھی تھی کہ باب افعال یوز ہوتا ہے فعل لازم کو فعل متعدی بنانے کے لیے. یہ پہلا ہم نے کہا تھا, اس کے ساتھ ایگزامپل بھی آپ نے دیا تھا. اور دوسرا ہم نے کہا تھا کہ اس کا میننگ ہے دخول کا میننگ, دخول فاعل فی الزمان والمکان وعدد, یعنی کہ باب افعال دخول کا میننگ دیتا ہے. جیسے کہ آپ نے کہا تھا اصبح زید, اعرق زید, اعشر قوم. تو یہ دو ہم نے میننگ پڑھی تھی اور آپ نے آج کہا تھا کہ باقی میننگ پڑھیں گے انشاءاللہ. بہت اچھا. چلیے اب ہم آتے ہیں کہ دخول کی میننگ ہو گئی اور پھر اس کی. تو اب ہم آتے ہیں جو باب افعال کی ہمارے پاس ہم نے متعدی کا بھی پڑھا تھا نا. باب افعال متعدی کی میننگ دیتا ہے اور دخول کی میننگ. ابھی ہم آتے ہیں, میں 3 لکھتی ہوں یہاں پر, آپ نوٹ کریے گا. نمبر 1 جو باب افعال کی میننگ ہے وہ ہے تعدیہ. تعدیہ یعنی تعدیہ یعنی متعدی بنانے کے لیے. یہ جو ہم نے کیا. نمبر 2 ہم نے کیا تھا دخول, یہی کیا تھا نا, دخول الفاعل, پھر فاعل فی الزمان فی الزمان و مکان و عدد. صحیح, والعدد. صحیح. تیسرا آج ہم کریں گے تعریض. یہ آپ نوٹ کریے گا, اس کی ایک ایک میں ڈیٹیل سے بتاؤں گی. ایک اور میننگ ہوتی ہے باب افعال کی, وہ ہے تعریض. تعریض کا مطلب ہوتا ہے زوات کے ساتھ ہے. تعریض یعنی عرض, کسی چیز کو وسیع کرنا, کسی چیز کو پھیلانا. ہاں تعریض, مریض اسی سے آیا ہے نا تعریض. کوئی چیز ہم نے کی اور وہ ہو گئی. اور تیسری چوتھا جو باب افعال کی میننگ ہے وہ ہے سیرورت. سیرورت یعنی کسی چیز کا ہونا. کیا ہے آنٹی سیرورت؟ سرر سے ہے نا, سرو. سارا یعنی ہو جانا, کسی چیز کا ہو جانا سواد کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, ہاں. اور میں ڈیٹیل سے بتاتی ہوں ایک ایک کا. جی جی ہمیں موزرا پسے تو بیچ پہ رہتا تعدیہ نے ابتدا. مجھے لگتا ہے دیکھیں આપણે પેલું પડા તો તાદિયા, પછી આપણે પડા તો ઇબ્તિદા, પછી આપણે પડા તો સુલ્બ, અને ચોથું આપણે પડા તો વિજદાન શિફત. سیروت میں کیا پڑھا تھا آپ نے نسیمہ پر؟ سیروت میں انٹی باب تفعول میں پڑھا ہے. سیروت کیا تھا؟ افعال میں سیروت نہیں تھا جی. باب افعال میں نہیں تھا.
babi Al ifal sulb. tafaul ma. देखिए यहाँ पर जब मुझे लगता है क्योंकि शुरू में मैं भी आपको याद है, मैं भी आपको ज़्यादा नहीं पढ़ाती थी। हो सकता है मुताहरा कोशिश करती हो ना कि ज़्यादा ना वो करे आपको, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। Selasa mujarrid ka mana हाँ ये देती है। बिल्कुल सही। तो मुझे हाँ चौथा, इसकी 8 मीनिंग है टोटल। जो बाब इफ़ाल है ना वो 8 मीनिंग होती है, लेकिन ज़्यादातर जो इस्तेमाल होता है, जो मुताहरा ने आपको पढ़ा है बिल्कुल सही पढ़ाए हैं, वो ज़्यादातर जो इस्तेमाल होते हैं वो उस 4 मीनिंग में होते हैं। लेकिन ये जो है ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो अभी ये तो हमने कर लिया, तादिया भी हो गया, दुखूल फ़ाइल और तारीज़ को अभी मैं करती हूँ, सीरोरत भी होता है। और चौथी चार या 5वीं चीज़ जो हमने करते हैं, वक्त का पहुंचना, ठीक है, किसी टाइम का पहुंचना। ओके, वक्त का, जिसे आप कहते हैं टाइम का पहुंचना, किसी वक्त का हो जाना, किसी वक्त का हो जाना किसी चीज़ के। इसको मैं अभी खोलती हूँ ताकि हम आसानी से कर सकें। और किसी मफऊल की सिफत को पाना, 6 जो भी आपने कहा ना कि किया है, किसी सिफत को पाना, किसी मफऊल को किसी सिफत में किसी क्वालिटी में हासिल करना। तो 7वीं तो अभी आपने कहा सुल्ब, किसी चीज़ को सल्ब करना, सुल्ब करना, खींचना। और 8वीं जो चीज़ सुनना जी तो 3 और 5 बोले थे जी हमारे किसका किसी को सिफत 6 जो है हाँ, मफऊल को सिफत, मफऊल को किसी सिफत में पाना। मैं अभी इसको बताऊंगी, एक चीज को खोल के बताती हूँ, ठीक है, तो हमारे लिए क्लियर हो जाएगा। देखिए किसी मफऊल को, फाइल को नहीं मिक्स नहीं करेंगे ना हम। मफऊल को, किसी मफऊल को किसी सिफत में हासिल करना। जैसे अहमद तो ज़ैदन, मैंने हम्द की, मैंने तारीफ की ज़ैद की, तो ज़ैद की तारीफ हुई ना। अहमद तो ज़ैदन, मैंने तारीफ की ज़ैद की। आंटी ये हम लोग माना सलासी मुजर्रद में रखा है। अच्छा ये आप बोलता है ना। हाँ नहीं, अहमद तो मैंने अहमद तारीफ तो की। अनशत तो हबला, मैंने गाछ को खोला। अब खल तो बकरा, हाँ हाँ। तो कोई बात नहीं। नशत तो हबला ने पर अनशत तो हबला, ये दोनों। अच्छा नशत तो हबला એટલે मैंने गाछ को बांधा ने પછી अनशत तो हबला એટલે मैंने गाछ को खोला। खबर ना, ये उल्टी मीनिंग हो गई ओलू ना। बांधा ने खोला, ये सल्ब की मीनिंग हो गई ना, ये सल्ब की मीनिंग उल्टा मीनिंग हो गई ना, ये उल्टी मीनिंग हो गई। ये सलासी मुजर्रद में पता नहीं। ये सुल्ब बनी मीनिंग थे, ये सुल्ब की मीनिंग हो गई। आज खबर છે સુલભમાં બધી આપણે એમ કહી રહ્યા હતા जम तो किताब, मैंने किताब को गलत चीजों से दूर किया। अजम तो मैं नहीं समझी। हाँ जम तो किताब, मैंने किताब को गलत चीजों से दूर किया। इसकी कई तो ज़ैदन, मैंने ज़ैद को शिकायत दूर की। हाँ ये दूर ये कर, सुल्ब हाँ, में। सुल्ब में बिल्कुल सही है, ये सुल्ब में, ये सुल्ब में। हाँ। चलिए ને પછી વિઝદાની સિફત છે ને, યાની વિઝદાની સિફત ઈ છે અઝમતુલ્લાહ, मैंने अल्लाह को अजीम पाया। बिल्कुल सही, मैंने यानी यहाँ सिफत अल्लाह की हो रही है, अल्लाह यहाँ पर मफूल वाक़ हो रहा है, फाइल में वाक़ हो रही हूँ। अकबर तो यूसुफ, मैंने यूसुफ को बुजुर्ग को पाया। मैं पाया किसने, मैंने सिफत माना। हाँ मैंने पाया यूसुफ को, यूसुफ कौन हो गया, मफूल। बुजुर्ग को पाया। चले बहुत अच्छा, सही, बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल सही है। लेकिन वही आते हैं कि सेम मीनिंग आ जाती है, बस थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है। बस ज़्यादातर जो मीनिंग इस्तेमाल होती है वो तादिया, तारीज़ और वही दुखूल फ़ाइल, और ये जो किया वक्त का पहुंचना, और सिफत मफूल की, और सलासी मुजरद की भी मीनिंग देता है, और सुल्ब की मीनिंग में ज़्यादातर आता है। तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गए नसीमा आपा। आपने तो सारे पढ़ लिए हैं ये सलासी मुजरद। चले 8 मीनिंग है हमारे पास बाबे इफ़आल की। बाबे इफ़आल की 8 मीनिंग है। ये हमने तादिया हमने कर लिया, दुखूल फ़ाइल कर लिया, और तारीज़ में हम आते हैं। तारीज़ में आता है
زید نے اپنی کتاب کو یعنی اپنی کتاب کو پیش کیا، جسے ہم کہتے ہیں نا تعریض کا مطلب ہوتا ہے پیش کرنا، تو یہاں پر ہم یوں کہیں گے اباع 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 زید، ہاں اباع زید کتابہ، زید نے بیچنے کے لیے پیش کیا اپنی کتاب کو، عرض سے نکلا ہے نا پیش کرنا، ٹھیک ہے. یہاں پر ایک میننگ یہ ہو گئی اباع زید کتابہ، زید نے اپنی کتاب کو بیچنے کے لیے سامنے بیچا یا پھیلایا یا کھول کے سب کے سامنے رکھ دیا. سیر و رت میں ہم آتے ہیں، کسی کے چہرے کو کسی کی چیز کو بیان کرتے ہیں، سررا سے آیا ہے. اچھا سیر و رت میں کیا ہوتا ہے، کسی ایک کی چیز کسی دوسرے کی ہو جائے، یعنی کوئی ایک چیز ہے جو اس کا مالک اس کا دھڑی جو ہے وہ کوئی اور بن جائے، اس کو کہتے ہیں سیر و رت میں آ جائے گا. ٹھیک ہے یہاں پر ہم یوں کرتے ہیں، چلیے سیر و رت میں کیا آ جائے گا، اغد العبیر اغد العبیر، یہاں ہم کہیں گے کہ اغد، یوں ہم کہیں گے کہ جو ہمارے پاس اونٹ ہے نا، اونٹ اس کا کوئی اور مالک ہو گیا، صحیح. کیا آنٹی آپ نے گدا اغد گدا اغد اغد ہیں؟ اغد کل، اغد غدا کہتے ہیں نا، اغد غدا کہتے ہیں نا، کل کو کیا کہتے ہیں، ہاں گدن غدن کہتے ہیں نا، تو کل جو ہے وہ اونٹ کا کوئی اور مالک ہو جائے گا. صحیح اوکے. اغد العبیر، ایکسکیوز می، یہ فور کا کیا لکھیں گے، اغدن، ابھی آپ ترجمہ کیا دیکھیں سیر و رت کی میننگ ہوتی ہے کہ کوئی ایک چیز ہے نا تنویر آپا، جیسے میرے پاس یہ ہے، ٹھیک ہے یہ بورڈ صاف کرنے کا ہے، آج اس کی مالک میں ہوں، کل اس کی مالک آپ ہو جاؤ گے، یعنی ایک چیز کا مالک بدل جانا، کسی کوئی اور مالک ہو جانا، اچھا بدل جانا، ٹھیک ہے. اغد العبیر، اغد کل جو ہے وہ اونٹ کا کوئی اور مالک ہو گیا. صحیح، پر یہ بہت استعمال نہیں ہوتا، بس میں کیونکہ آ رہا ہے تو میں آپ کو لکھوا رہی ہوں. 5واں یہ آتا ہے کسی چیز کے وقت کا پہنچنا، 5واں ہے کہ کوئی وقت کا پہنچنا، جیسے ہم کہتے ہیں نا احسد الزراع، احسد کا مطلب ہوتا ہے نا کہ آپ کو پتہ ہے نا احسد وہ جو ایگریکلچر ہوتا ہے نا، جب ہم اگاتے ہیں اور پھر جب وہ پک جاتا ہے تو اس کو جو کاٹتے ہیں نا اس کو کہتے ہیں، ہم نے قرآن میں پڑھا ہے نا حسید، نسیم آپا سعید آپا حسید، حسید کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کاٹنا، یا اس کو نہیں وہ جو جیسے گندم پک جاتی تو کیسے اس کو کرتے ہیں، کاٹتے ہیں نا اس کو. تو احسد الزراع، زراعت کے کاٹنے کا، اس کو چننے کا وقت آ گیا. اوکے اچھا یہاں جو چھٹی تو ابھی بہت خوبصورت طریقے سے آپ سب نے بتایا. چھٹی جو میننگ آتی ہے وہ یہ آتی ہے، جو چھٹی میننگ ہے کہ مفعول کو کسی صفت میں پانا. ابھی آپ نے بھی بتایا احمد تو زیدن، میں نے زید کو حمد میں پایا، یعنی زید کی کو تعریف میں پایا، مجھے زید ایسے ملا کہ سب اس کی تعریف کر رہے تھے. ٹھیک ہے احمد تو زیدن. یا ہم کہہ سکتے ہیں اس کو ابخلتو، ابخلتو بکرن، میں نے بکر کو بخیل پایا، مجھے بکر بخیل لگا، بخیل یعنی کنجوس. ابخلتو ہاں مجھے بکر کنجوس لگا، یعنی بکر کے اندر ایک کوالٹی ہے کنجوسی کی، بخل کی. اور یہ ہو گیا ہمارا. اور پھر اس کے بعد آتے ہیں
हमारी जो सातवीं क्वालिटी है वो सल्ब की क्वालिटी छीनना, सुल्ब या सल्ब छीनने को कहते हैं, सीन लाम और बा। तो इसमें आ जाते हैं अशकई, तो अशकई अंटी वाला होता है पास किसका अजमत आपा? बकील हल तो बकर अब अहमद अब खल तो बकरन, अब खल तो बकरन, मैंने बकर को बखील पाया। तो आंटी उसको कहते हैं विजदान सिफत, ये हाँ ये है, नहीं हाँ ये वाला है विजदान सिफत, बहुत अच्छा नसीब। हाँ विजदान सिफत, हाँ हाँ इसको कहते हैं विजदान सिफत, ठीक है। अशकई तो हूँ यानी मैंने अशकई तो दूर कर दी शिकायत मैंने उस मर्द की, तो अशकई तो मैंने दूर कर दी, तो ये सुल्ब की मीनिंग में आया ना, छीनने की मीनिंग में आया, छीनना। आपको पता है बाबे इफ़ाल बहुत बहुत जगहों पर छीनने की मीनिंग आया है, बहुत जगहों पर, इसको आप देखिएगा, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद आता है सलासी मुजर्रद की मीनिंग में आती है, जैसे काल या अकाल ज़ैदुन बे। हाँ अंटी सातवीं सुल्बनी सुको में किधर एग्जांपल सॉरी अशकई तो ज़ैदन, अशकई तो हूँ या अशकई तो ज़ैदन, दोनों ठीक है। अशकई तो हूँ मैंने उसकी शिकायत को दूर कर दिया। अच्छा फिर हम आते हैं जो सलासी मुजर्रद की मीनिंग में आता है, उसकी मीनिंग में आते हैं, वो क्या है, जैसे काल या अकाल। अकाल आपको पता है ना, अकाल ज़्यादातर अकाल जो होता है वो किसी मामले को ख़त्म करने की मीनिंग में आता है, तो अकाल ज़ैदुन अल बे, बे यानी वही बेचना खरीदना, तो ज़ैद ने बेचने के जो मामला है उसको मंसूख कर दिया, उसको पोस्टपोन कर दिया, उसको खत्म कर दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा बाबे इफ़आल की मीनिंग। जी ये क्या है, अकाल ज़ैदुन, हाँ अलबई बे यानी बेचना खरीदना, अलबई बे बयाउन अलबई। तो इसकी मीनिंग क्या, ज़ैद बेचने को यानी बेचने के मामले को ज़ैद ने पोस्टपोन कर दिया, खत्म कर दिया, ये हम कहेंगे। तो ये आठवीं मीनिंग में आता है अकाल ज़ैदुन अल बई। हाँ ये आठवीं मीनिंग में आएगा सलासी मुजर्रद। तो सलासी मुजर्रद का थोड़ा आप समझा सकते हैं कि सलासी मुजर्रद यानी कैसे, मैं बहुत नहीं समझी ये वाला। देखिए अज़मत आपा यहाँ पर सलासी मुजर्रद बहुत अच्छा आपने कहा, मैं इसको अच्छे से समझाती, मुझे लगा कि आता है। देखिए सलासी मुजर्रद की असल मीनिंग ये होती है कि जैसे आपके पास एक प्योर क्या कहते हैं, साफ शफाफ आपके पास एक लफ्ज़ है, आपने उसकी मीनिंग की है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, ज़रबा का मतलब होता है मारा एक मर्द ने, ठीक है। ज़रबा एक साफ शफाफ सलासी मुजर्रद है। अब इसको आप बाबे इफ़ाल में ले जाओगे तो कभी कभी वो सलासी मुजर्रद की मीनिंग देता है, यानी मार रहा है वो, मारा एक मर्द ने, सेम मीनिंग देगा। जो बाब अगर हम उसको बाब में ना ले जाए और जो सिर्फ और सिर्फ सलासी मुजर्रद यानी प्योर और साफ जिस तरह से था वो मीनिंग देगा, और सेम मीनिंग देगा जब हम उसको बाब में भी ले जाएंगे। क्लियर हुआ? अगर नहीं हुआ तो हम करेंगे इसको बाय फोर्स। चले ये हो गई हमारे पास बाबे इफ़आल की 8 मीनिंग जो हमने कर ली है। चले अभी हम आते हैं थोड़ा सा વધારે પડતું આંટી શું વધારે યુઝ થાય છે આ છે મીનિંગ માંથી જે વધારે કુરાન માં આપણને મળે કઈ मीनिंग મળે? बहुत अच्छा, मैं हूँ ना उसको हाईलाइट करती हूँ, ठीक है। ज़्यादातर जो हमें मीनिंग मिलती है कुरान में वो मिलता है तादिया, बहुत ज़्यादा मिलता है, बहुत ज़्यादा, और सल्ब ये बहुत बहुत ज़्यादा मिलता है, और सिफत फेल ये बहुत मिलता है,
یہ بھی ملتا ہے لیکن یہ کم ہے, یہ بھی ہے لیکن یہ کم, اور دخول یہ بھی بہت ہے, یعنی یہ فرسٹ نمبر پر یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, لیکن جو سیکنڈ نمبر پر ہے یہ, اور تھرڈ نمبر پر یہ آئیں گے. تو زیادہ تر جو آپ تک کریں گے وہ انہی کی کریں گے, داخل ہونا, تادیہ اور صفت کا پانا, اور صلب کی میننگ, زیادہ تر اس میننگ میں آتے ہیں. چلے یہ ہو گیا ہمارا باب افعال. اب ہم آتے ہیں باب افعال. باب افعال میں کا ساتواں کون سا ہے؟ جی ساتواں کون سا ہے؟ ساتواں یہ سلب, سلب ہاں یا سلب, چھیننا, کسی چیز کو چھیننا, ٹھیک ہے, چھیننا, کسی چیز کو دور کرنا, چھیننا, اس کی میننگ میں آئے گا اس سلب کی یا مثال سلب. نہیں دی ہے نا. مثال میں نے دی تھی, اشکیتہ, میں نے اس کی شکایت کو دور کر دیا. اچھا اشکیتہ, یہ چیز جی ہاں میں نے اس کو وجدان چھٹے میں لکھی. اچھا, وہ میں نے تھوڑا سا جگہ اسپیس تھی نا تو اس نے ہی ساری مثالیں لکھ دی ہے. اشکیتہ. طاہرہ بہن ہم ہے نا انشاءاللہ یہ جو باب افعال ہے اس کی ہم نے پریکٹس بھی کرنی ہے. جب ہمیں پورے طریقے سے پریکٹس کر دوں گی نا پھر میں باب تفعیل میں آؤں گی, ورنہ مجھے لگتا ہے میں باب تفعیل میں نہیں آؤں گی جب تک 100% مجھے یقین ہو جائے گا نا. چلے ابھی لاسٹ ایک چیز ہے جو رہتی ہے, جی لاسٹ چیز جو رہتی ہے باب افعال کی, باب تفعیل کی, وہ یہ ہے جو آج ہم کریں گے. اس کو آپ اچھے سے نوٹ کریے گا, بہت 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 اچھے سے آپ کو نوٹ کرنا ہے, کیونکہ یہ بار بار پھر میں آپ سے کرواؤں گی, اور اس میں ہم لوگوں کو مسٹیک نہیں ہونی چاہیے نا. چلے اچھا, جب ہم نے, آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کہا تھا ہمارے پاس فاعل کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. فاعل کی ہمارے پاس 2 قسمیں ہوتی ہیں, مفعول کی ہمارے پاس 2 قسمیں ہوتی ہیں, ہے نا. ہمارے پاس فاعل کی 2 قسمیں ہوتی ہیں اور مفعول کی بھی ہمارے پاس 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے سمپل فاعل. جو سمپل فاعل ہوتا ہے وہ ہر قسم کا اسم ہو سکتا ہے اور ضمیر یعنی پروناؤن ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن دوسرا ہوتا ہے اسم فاعل. اسم فاعل جو ہوتا ہے وہ خاص, اس کے بنانے کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا. جیسے ہم کہتے ہیں محمد, کریم, نسیم, یہ سب جو ہے وہ فاعل میں آ سکتے ہیں, لیکن اسم فاعل میں یہ نہیں آ سکتے. اسم فاعل کا خاص ایک وزن ہوتا ہے اور وہ وزن ہوتا ہے فاعلن. یعنی ہم جب کریں گے تو ہم کہیں گے ناسمن, یا محمد کو ہم کر دیں گے حامدن, یا کریم کو ہم کر دیں گے کارمن. اوکے, یہ اسم فاعل کا خاص وزن ہے. اسم فاعل یعنی اس وزن کے مطابق. بالکل اسی طریقے سے مفعول, مفعول بھی جو ہم کہتے ہیں اسم بن سکتا ہے, ضمیر بن سکتا ہے, لیکن اسم مفعول ایک ہوتا ہے ہمارے پاس. اسم مفعول, اسم مفعول جو ہوتا ہے اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے اور وزن ہوتا ہے, وہ وزن کے مطابق ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں ہم کیا کہیں گے, محمود, محمودن, یا مکرومن, مکرومن, یا منصومن. یہاں اس وزن پر مفعولن کے وزن پر ہوگا. جو وزن پر ہوگا وہ اسم فاعل اور اسم مفعول ہوگا. جو بغیر وزن کے ہوگا تو وہ ہمارے ضمیر بھی ہو سکتا ہے اور عام بھی ہو سکتا ہے. بالکل اسی طریقے سے ہم جب ثلاثی مجرد, البتہ ثلاثی مجرد یعنی سمپل بغیر کسی باب کے, جب ہم بغیر کسی باب کے جو ہمارے پاس لفظ ہوگا اس سے اسم فاعل بنائیں گے اور اسم مفعول بنائیں گے تو اس کا وزن ہوگا فاعلن, اور مفعول بنائیں گے تو اس کا وزن ہوگا مفعولن. یہ وزن ہوگا, میم پہلے ہوگا اور پھر فا یعنی جو پہلا حرف ہے, پہلے حرف سے پہلے میم ہوگا اور پہلا حرف ساکن ہوگا, اور دوسرا حرف جو ہوگا ہمارا عین الفعل جو ہے وہ پیش لے گا اور واو مدی لے گا. آخر میں تنوین ہوگی کیونکہ ناؤن ہے. فاعل بھی بالکل اسی طریقے سے
पहला हर्फ फाउल फेल के बाद एक अल्फ आता है जिसको अल्फ ज़ाइदा कहते हैं। अल्फ ज़ाइदा मीन्स एक्स्ट्रा, इसको कहते हैं अल्फ ज़ाइदा। इसका कानून होता है, इंशाल्लाह इसका कानून आएंगे, हम पढ़ेंगे, आप सबको याद होगा। हम कहते हैं सोम सवम साइम हो जाता है, कवम से काइम हो जाता है, कवल से काइम हो जाता है, कवल से काइल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अल्फ ज़ायदा होता है। ये है हमारा इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ूल बनाने का तरीका सलासी मुजर्रद में, यानी सिंपल में। लेकिन जब हम इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ऊल बनाते हैं, किस में बनाते हैं? बाब में। जब हम बाबों में, हाँ बहुत अच्छा नसीमा आपा, जब हम बाब के अंदर जाते हैं और बाब के अंदर हमने इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ऊल बनाना होता है, तो उसका तरीका क्या है? हम किससे बनाते हैं? ये हो गया सिंपल, ये हो गया सलासिये मुजर्रद में, यूँ लिखती हूँ, ठीक है, सलासिये मुजर्रद। ये हो जाएगा सलासिये मजीद। फिर इसमें सब बाब आ जाएंगे। उसके बनाने का तरीका ये होता है, जैसे हम कहते हैं करम अकरम, अकरम युक्रिमु, ये बनता है फेले मुजारे से, युक्रिमु। अच्छा, यहाँ पर क्या करते हैं? बाब के अंदर बहुत बहुत जबरदस्त, बहुत बहुत अच्छा। यहाँ पर हम क्या करते हैं? हर्फ मुजारे को हटाते हैं, उसकी जगह पर एक मीम रखते हैं और उस मीम को पेश दे देते हैं। अच्छा, तो इसके आसानी से बनाने का तरीका क्या है कि अच्छा, फिर हम इसको आखिर में हम तनवीन कर देते क्योंकि नाउन है। और फिर सेकंड लास्ट अगर जेर लेगा, इसको नोट करिएगा, ठीक है, सेकंड लास्ट अगर जेर लेता है तो ये हो जाता है इसमें फाइल। और अगर सेकंड लास्ट अगर मफूल बनाना हो तो सेकंड लास्ट को हम जबर दे देते हैं, तो हो जाता है, हाँ हो जाता है इसमें, हाँ मफूल। बस बन गया हमारा इसमें फाइल और इसमें मफूल। मुकरमुन मुकरा मुकरे मुन इसमें फाइल, मुकरमुन इसमें मफूल। ये सब बाबों में होता है। फिर ये सब बाबों में होता है, ठीक है। जितने भी बाब होंगे इसको बनाने का तरीका, इसमें फाइल और इसमें मफूल बनाने का तरीका यही होगा कि हम मुकरा जब सेकंड लास्ट को जेर देंगे तो हो जाएगा इसमें फाइल, और सेकंड लास्ट को जबर देंगे तो हो जाएगा इसमें मफूल। चलिए इसको थोड़ा हम सर्व करते हैं, फिर हम अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं। थक गए होंगे ना आप लोग सब? जरा कुछ एक जल्दी स्पीड है तो बहुत स्पीड नहीं फॉलो नहीं कर सकते। चले कोई बात नहीं, फिर से मैं करती हूँ, ठीक है, हम फिर से इसको करते हैं, मैं दोबारा से करती हूँ, पूरा 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 दोबारा से करती हूँ। एक ले आप जो आज समझा रहे हैं वो इसमें फाइल और इसमें मफूल जो हम बाप के जो बनाने का तरीका वो आप समझा रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल. Olu setelahsi mujarrad tu itu enu simple dulu. Failun ne mafulun ni bersama. Ne anu olu ne babi al machi olu करे mim nakhi. हाँ. Zer होई तो इसमें फाइल ने जबर होई तो इसमें नॉर्मली, हाँ नॉर्मली जब हम फाइल बनाते हैं तो अगर हम मैं आपको लफ्ज़ देती हूँ फाइल का, तो अजमत आपा मैं आपको कहती हूँ नसर, नसर से आप इसमें फाइल बनाए, नासिर इसमें फाइल सिंपल हो गई। इसका आप इसमें मफूल बनाए मंसूरुन, मंसूरुन। अब मैं कहती हूँ इसका बाबे इफ़आल का इसमें फाइल बनाए, बाबे इफ़आल का इसमें फाइल तो नसरा था तो अंसरा युनसिरु પછી યુનસિરુનું મુનસિરુન થઈ જાય। बहुत अच्छा। नासिरुन मनसूरुन मफऊलुन के वजन पर, सिंपल बासलासिये मुजर्रद का इसमें फाइल हो जाएगा फाइलुन के वजन पर नासिरुन, और मफऊलुन के वजन पर हो जाएगा मंसूरुन।
जब हम बाबे इफ़आल में आएंगे, और मैं आपको बाबे इफ़आल का इसमें फ़ाइल, पहले इसमें फ़ाइल बनाते हैं। बाबे इफ़आल के या जितने भी बाब हैं हमारे पास, उनके इसमें फ़ाइल बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप फ़ेल मुज़ारे में आए। बाबे इफ़आल जब आता है नासिर से करते हैं। नासिर का जो फ़ेल माजी होगा वो क्या होगा? अनसरा, अनसरा। फिर हो जाएगा यून सिरो। अब मुझे जी, अब मुझे इस यून सिरो जो है ना, इससे इसमें फ़ाइल बनाना है, मुझे इससे बनाना है। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले कि मैं इस या को जो हरूफ अतैन है इसको मिटा दूंगी और उसकी जगह पर एक मीम ले आऊंगी जो कि पेश वाला होगा, और आखिर से तनवीन कर दूंगी, क्योंकि तनवीन निशानी है नाउन की, और इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ूल, चाहे बाब के हों चाहे सलासी मुजर्रद के हों, इसमें फ़ाइल इसमें मफ़ूल हमेशा नाउन होते हैं, वर्ब में कभी नहीं आते। सही। अब मैंने बनाया इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ूल मुझे बनाना है, तो अगर मैंने सेकंड लास्ट को ज़ेर दे दी, मुनसिरुन कर दिया, तो ये हो जाएगा इसमें फ़ाइल, और अगर मैंने यहाँ मुनसरुन कर दिया, ज़बर दे दी सेकंड लास्ट को, हो जाएगा इसमें मफ़ूल। क्लियर? अच्छा, जितने भी बाब होंगे ना, इसको आप नोट करिएगा, जितने भी बाब, हाँ, बाकी सिंपल नहीं, सिंपल सलासी मुजर्रद नहीं, जितने भी बाबों में हम जाएंगे उनके फ़ेल मुज़ारे से हमने बनाना होगा इसमें फ़ाइल। हम उसमें यही करेंगे, फ़ेल मुज़ारे की अलामत मुज़ारे को हटा कर एक पेश वाला मीम रख देंगे, लास्ट को तनवीन कर देंगे, सेकंड लास्ट को अगर इसमें फ़ाइल है तो ज़ेर आएगी, अगर इसमें मफ़ूल है तो फिर ज़बर आएगी। जैसे नज़ल, नाजिल, नाजिल यानी उतरने वाला, ठीक है, नाजिल, नाजिलुन उतरने वाला। अभी यहाँ पर मैं आऊँगी, इसको बाबे इफ़ाल पे बनाऊँगी, तो मैं क्या करूँगी, यून पहले करूँगी युनज़िलु, अभी इसको या को हटा के मीम कर दूँगी, तनवीन हो जाएगा, यहाँ कर दूंगी मुनजिलुन यानी उतारने वाला। नाजिलुन खुद उतरने वाला, मुनजिलुन उतारने वाला। सही, इसकी मीनिंग ये हो जाएगी। इसी तरीके से जब हम बाबों में जाएंगे ना और बाबों की मीनिंग हम करते जाएंगे तो फिर हमें अच्छे से हो जाएगा। इतना काफ़ी है, लेकिन इंशाल्लाह इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ूल को मैं एक दफ़ा सर्व करके आपको बताती हूँ। इसको आपको सर्व करना है, मैं सबको एक एक लफ्ज़ देती हूँ, एक एक लफ्ज़ सर्व करिएगा। मुझे तनवीर आपा के सिर्फ़ और सिर्फ मिले हैं जो उन्होंने भेजा है, अभी तक बाकियों के नहीं मिले। चले, जैसे नासिर है मंसूर, तो हम करेंगे करम, युक्रिम, मुकरिम। मैं इसको सर्व करती हूँ, मुक रे मुन, ये हो जाएगा मुकरिमुन। मुकरिमान, बहुत अच्छा। मुकरिम यानी करम करने वाला एक शख्स, मुकरिमाने करम करने वाले दो, मुकरिमून करम करने वाले बहुत ज्यादा, मुक रे मतुन करम करने वाली एक औरत जी, मुक रे मताने बहुत जबरदस्त, करम करने वाली दो औरतें। और फिर मुकरिमातुन बहुत जबरदस्त, मुकरिमातुन करम करने वाली बहुत ज्यादा औरतें। इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ूल में सिर्फ और सिर्फ 6 सीखे होते हैं। इसमें कोई भी सिर्फ मेल फीमेल होते हैं, सिंगुलर प्लूरल डुअल होते हैं, मुखातिब मुगायब मुतकल्लिम नहीं होते, इसमें यही होते हैं। ठीक है, तो ये आपको मैं कुछ लफ्ज़ देती हूँ, 4-5 लफ्ज़ देती हूँ, इसको आपको सर्व करना है। सही, एक लफ्ज़ है
जमद जी जी. तो इसमें मफूल नहीं करना आंटी. इसमें मफूल तो यही है ना, मुकरमुन, मुकरमाने, हाँ मुकरमीना, हाँ हाँ जबर ने जेरज बदलाते. हाँ. मुकरमताने, मुकरमातुन. सिर्फ जबर और जेर का फर्क है ना. हाँ. जब जबर आएगी तो मफूल, जब जबर आएगी तो मफूल हो जाएगा, जब जेर आएगी तो सॉरी इसमें मफूल हो जाएगा, और जब जेर आएगी तो इसमें फाइल हो जाएगा. हाँ? अच्छा, ये हो गया जमद. जमद को आपको सर्व करना है. बस 3 लफ्ज आपको देती हूँ, ज़्यादा नहीं देती, ताकि आपके लिए ना आसानी हो, मुश्किल ना हो. एक जमद को आप करिएगा, और एक आप करिएगा नसर को, नहीं ज़हब को, ज़हब. ओके, ज़हब, बस 2 लफ्ज. जमद का मीनिंग क्या होगा आंटी? जमद का मतलब होता है ठोस, मजबूत, सख्त. ओके. चले, इसको आप करिएगा, और इसको. यहाँ तक काफ़ी है आज के लिए, और मैं कुरान की कुछ आयतें भेजती हूँ. इसमें आपको जी सहब बीजू सोच. जमद और ज़हब, ज़हब. सहब. अच्छा, मैंने आपको बाबे इफ़ाल की कुरान की आयतें भेजी या नहीं भेजी ना? नहीं भेजी. नहीं भेजी. ये 2 लफ्ज आपने जो कहा है उसका इसमें फाइल और इसमें मफूल बनाना. हाँ, इनका इसमें फाइल, इसमें मफूल बनाना है, बाबे इफ़ाल का दोनों का बनाना है. सॉरी, इसका सलासी मुजर्रद और बाबे इफ़ाल, इसका भी सलासी मुजर्रद और बाबे इफ़ाल. ठीक है. अच्छा, मैं अभी आपको भेजती हूँ कुरान की कुछ आयतें हैं, ये इस पे हम नेक्स्ट टाइम काम करेंगे. ओके, तो इसलिए मैं आपको भेजती हूँ कि आप पहले से रेडी रहिएगा. हाय हाय, अच्छा ठीक से नहीं आ रही. मैं आपको भेजती हूँ, फिर आप इस पे रेडी रहिएगा, और हम जो है वो इंशाल्लाह इसके ऊपर हम काम करेंगे. क्यों नहीं हो रहा? चलिए, मैं आपको थोड़ी देर में भेजती हूँ. ठीक है. मिनट में अभी भेजती हूँ, ताकि हो गया. मैंने स्पेशल ग्रुप में भेजा है. अजमत आपा, नसीम आपा, सईद आपा के ग्रुप में आ गया. बाकी ग्रुप्स में अभी भेजती हूँ, लेकिन वो बेचारे डर जाएंगे, इतना मुश्किल होगा ना उनके लिए. हम लोग नहीं डर जाएंगे तो. ना, आप तो डराने वाले. नसीमा अभी माशाल्लाह आप उस जगह पे आ गए कि आप डराने वाले हो गए. अभी आप नहीं डरते माशाल्लाह. हमारा परेपन. ये आप वाले बच्चे हैं ना माशाल्लाह बड़े हो गए. अभी वो जो बेचारे बच्चे हैं ना वो भी छोटे हैं. वो डर जाते. चले, आज के लिए काफी है ना, हम एक सलवात पढ़ते हैं. मोहम्मद